بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب نسیم ہدایت کے جھونکے، پارٹ نمبر 33، جلد اول، تاج حرم۔ مولانا صاحب نے مجھے کلمہ پڑھایا، کھانا کھلایا، میرا نام محمد اسعد رکھا، تھوڑی دیر باتیں کی، مجھے وضو کرا کے مدرسے لے گئے۔ ظہر کی نماز میں نے ساتھ پڑھی۔ مدرسہ کے بچے مجھے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے کیونکہ میں نماز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے نماز آتی نہیں تھی۔ میں نے 10,000 روپے مولانا صاحب کو دیے کہ مجھے جماعت میں جانے کے لیے کہا ہے۔ میں اپنے ان پیسوں سے یہ کام نہیں کرنا چاہتا، آپ یہ پیسے لے کر مجھے اپنے پاس سے خرچ دے دیجئے۔ مولانا صاحب نے کہا، یہ پیسے تو ہم بھی نہیں لے سکتے مگر آپ کے خرچ کا انتظام کر دیتے ہیں۔ انہوں نے مجھے خرچ دیا۔ 4 مہینے کے لیے جماعت میں جانا تھا۔ جماعت میں مجھے بڑے اچھے امیر ملے۔ وہ 12 بنکی کے ایک ٹیچر تھے۔ انہوں نے کہا جماعت میں اپنی جان اور اپنا مال لگانا چاہیے، اس لیے صرف ایک چلہ لگا کر میں نے اپنا کام کرنے کا پروگرام بنایا اور کما کر اپنے مال سے باقی 2 چلے لگانے کا ارادہ کیا۔ لوٹ کر پھلت آیا۔ مولانا صاحب پہلے تو وقت سے پہلے واپس آیا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئے، مگر جب وہ وجہ معلوم ہوئی تو بہت خوش ہوئے۔ مظفر نگر میں نے کلینک شروع کی جو شروع میں نہ چل سکی۔ 1 سال میں 3 جگہیں بدلی، مگر 1 سال کے بعد مولانا صاحب نے استغفار کی تسبیح بتائی اور روزانہ صدقہ کرنے کو کہا۔ اللہ کا شکر ہے کام اچھا چل گیا۔ اس کلینک سے میں نے اپنا گھر بنایا اور اب حال بہت اچھا ہے۔ سوال، فوجی صاحب کا کیا ہوا؟ جواب، مولانا صاحب بتایا کرتے تھے اس خط کو پڑھنے کے بعد ان کو تہاڑ جیل میں جا کر فوجی سے ملنے کی بڑی تڑپ ہوئی۔ کچھ روز میں وہاں جانے کا ایک بہانہ مل گیا، مگر جس روز وہاں جانا تھا ہندوستان ٹائمز میں یہ خبر چھپی کہ سنسر پال نے خودکشی کر لی۔ مولانا صاحب کہتے تھے کہ مجھے اس خبر سے حد درجہ صدمہ ہوا، پورے اعصاب پر اس کا اثر ہوا۔ انہوں نے اپنے شیخ کو اس المناک واقعہ کی اطلاع دی۔ مولانا صاحب بتاتے ہیں کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کو سناتے ہوئے میری ہچکیاں بن گئی۔ حضرت مرحوم نے مولانا صاحب کو بہت تسلی دی اور اطمینان دلایا کہ ہمیں امید ہے کہ اس شخص نے خودکشی نہیں کی ہوگی، اور اگر 1% اس نے خودکشی کی ہوگی تو ابھی اس کا مکلف نہیں تھا۔ انشاءاللہ اس کا خاتمہ بخیر ہوگا۔ بعد میں وہاں کے ایک مسلمان افسر جو اس وقت جیل کے ذمہ دار تھے، انہوں نے مولانا کو بتایا کہ اس سے قبل فوجی صاحب جیل سے 4 بار فرار ہو چکے تھے، اس لیے یوپی پولیس نے آئندہ کے لیے معذرت کر دی تھی، اس لیے تہاڑ جیل سے لے گئے تھے اور شاید الیکٹرک شاک سے ان کو مار دیا گیا اور بعد میں خودکشی کی خبر پھیلا دی گئی۔ اس افسر نے بہت افسوس کا اظہار کیا کہ اگر مجھے پہلے سے معلوم ہو جاتا تو میں ضرور کچھ کرتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ فوجی صاحب کی خواہش کافی حد تک پوری ہوئی۔ 31 غیر مسلم ساتھیوں میں سے 23 الحمدللہ مسلمان ہیں۔ ان میں سے 5-6 تو ایسے ہیں کہ عام لوگ اور خود ہم ان سے دعا کو کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی زندگی کا حال ایسا ہے کہ ان پر کتابیں چھپے ہیں۔ عجیب اللہ کی شان ہے کہ کس راستے سے رحمت کی ہوا چلائی۔ سوال، آپ کی شادی ہو گئی تھی؟ آپ کے خاندان کا کیا حال ہے؟ جواب، ہاں میری شادی ہو گئی تھی۔ میری بیوی میرے ساتھ ہر حال میں جس طرح رہی وہ مثالی بات ہے۔ اس نے میرے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک لمحہ میری مخالفت نہیں کی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مالک نے مجھے آپ کے ساتھ باندھا ہے، میں بھارت کی ایک پتنی ہوں، آپ کے ساتھ خوشی سے ستی ہونے کو تیار ہوں۔ جماعت سے آنے کے بعد جب میں نے اس کو اسلام کے بارے میں سمجھانا شروع کیا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ الحمدللہ میرے 3 بچے ہیں۔ بڑے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، چھوٹے کا محمد عمر، لڑکی کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ بڑا بیٹا حفظ کر رہا ہے، چھوٹا بیٹا تیسری کلاس میں پڑھ رہا ہے، فاطمہ بھی اب مدرسے جانے لگی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ ان سب کو اللہ جتنی اولاد دے گا سب کو عالم، حافظ، دین کا داعی بنانے کی کوشش کروں گا۔ گھر والوں نے شروع میں مخالفت کی، کچھ روز ناراضگی رہی، مگر میں نے تعلق رکھا اور والدین کی خدمت کرتا رہا۔ ہر ماہ ان کے پاس کچھ نہ کچھ لے کر جاتا ہوں۔ اب وہ خوش ہیں اور اسلام کے بہت قریب ہو رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اللہ نے خدمت کی بڑی تاثیر رکھی ہے۔ خدمت سے پتھر دل موم ہو جاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے ہم نے والدین کی خدمت نہیں کی، مگر اب میں اور میری بیوی جب بھی گھر جاتے ہیں بہت خدمت کرتے ہیں۔ اب وہ سارے بہن بھائیوں میں ہم سے ہی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سوال، مسلمانوں کے لیے کچھ خاص پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ جواب، اس کے لیے بڑا لمبا وقت چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کا باہر کا کوئی دشمن نہیں ہے۔ اسلام سے دوری ہماری سب سے بڑی دشمن ہے، بلکہ اسلام سے دور رہ کر ہم انسانیت سے دشمنی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم ایمان و اسلام ان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ خود مسلمانوں کو اسلام سمجھتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کے نام سے گھبراتے ہیں۔ اپنی سب سے بڑی ضرورت اور اپنی نجات کے راستے سے وہ ہماری وجہ سے دور ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے لیے نہیں تو ساری انسانیت پر رحم کھا کر ان کو اسلام کا تعارف کرانے کے لیے کم از کم ظاہری طور پر مسلمان بن جانا چاہیے۔ خدا کے لیے اس دردناک پہلو کی طرف توجہ کریں۔ سوال، واقعی اس سلسلہ میں ایک مستقل نشست چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی بار اس سلسلے میں باتیں کریں گے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔
जवाब इंशाअल्लाह ज़रूर। मेरे लिए ये बड़ा दर्दनाक मौजू है जिसका हमसे ज़्यादा दावत का काम करने वाले मुसलमानों को तजुर्बा है। मेरे अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इसने इस्लाम की तरफ हिदायत अता फरमाई। अहमद भाई, आप भी ज़रा हादी और करीम मालिक की करम फरमाई और कुदरत देखिए कि ढाका के अंधेरे रास्ते से इस्लाम की रोशनी की तरफ मुझ गंदे को निकाल लाए। रात रोते हुए मैं अपने अल्लाह के कुर्बान जाऊं, सदका जाऊं इसकी रहमत के। मुस्तफ़ा दस्माहनामा अरमगान, अक्टूबर 2004। चौथी जिल्द अर्ज़ मुरतब। अल्लाह का आखिरी दीन इस्लाम गैर मुतग़य्यर फितरत इंसानी की मुताबिकत के साथ इंसान के तमाम तग़य्युर पज़ीर अहवाल व कैफियत में रहनुमाई करता है। इस खुसूसियत में कोई दीन व मज़हब इसका हम कदम नहीं बन सका और ना क़यामत तक बन सकेगा। इस्लाम का पैगाम किसी मखसूस कौम व मुल्क के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम इंसानियत इसके मुखातब है। ये दीन तमाम दुनियावी और उखरवी कामयाबियों का ज़ामिन है। ये दीन किसी की जागीर नहीं बल्कि एक अमानत है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसे अमानत कहा है। इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबालि फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा व हमलहल इंसान इन्नहु कान ज़लूमन जहूला। सूरह अहज़ाब। तर्जुमा, हमने आसमानों, ज़मीन और पहाड़ों पर एक अमानत पेश की कि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उठाएं, लेकिन उन्होंने उज़र कर दिया कि हमसे ये बोझ उठा ना जा सकेगा और इस अमानत को संभालने की जवाबदारी से डर गए। जबकि इंसान ने इस बारे अमानत को उठा लिया। अब ये और बात है कि जो जालिम और जाहिल रहा उसने इस अमानत की अहमियत ना जानी और इसके लाने वाले जिब्राइल अमीन, जिनको कुरान ने रसूल अमीन अमानतदार फरिश्ता कहा गया और जिन पर नाजिल किया गया, उनका लक़ब भी सादिक और अमीन है। और मुखालिफ भी आपको हजार दुश्मनियों के बावजूद सच्चा और अमानतदार तस्लीम करता है। और हर नबी ने दावत के दौरान अपनी कौमों से जो कहा, अल्लाह ताला ने उसे कुरान पाक में नकल फरमाया, अना लकुम नासिहुन अमीन, मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, अमानतदार हूँ। गर्ज ये कि दीन हक के मुतालिक अमानत का तसव्वुर हमारे जहनों से बिल्कुल निकल गया कि अल्लाह ताला ने हमें ये बतौर अमानत दिया है और हमें इन भाइयों तक पहुँचाना है जिन तक ये अभी नहीं पहुँचा है। और कल आखिरत में अल्लाह ताला अपनी इस अमानत के ताल्लुक से हमसे ये सवाल करेंगे। अल्लाह के हुजूर सुरखरुई के लिए हमारा इस फरीज़े दावत पर खड़ा हो जाना इंतहाई ज़रूरी है। हमारे अंदर इस दावती जज्बा की आबियारी के लिए अपने नौ मुस्लिम भाइयों के इंटरव्यूज़ एक आईना है जिनकी रोशनी में हम अपने ईमानी जज्बात का जायजा लें। इसी मकसद के पेश नज़र नसीम हिदायत की झोंके की 3 जिल्दें मंज़िल आम पर आईं। साहिब वफादात दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम साहब सिद्दीकी मदसिल्लाहुल आली की दुआओं और तवज्जुहात की बरकत से देखते ही देखते इसके कई एडिशन 7 माह के अरसा में ख़त्म हो गए और अब ये चौथी जिल्द आप हज़रात की खिदमत में पेश है। मोहतरम मौलाना अब्दुल मुसव्विर साहब नदवी ज़ैद मुजद्दहुम और बरादर में मोहम्मद याकूब अली इब्ने जनाब मीर वाजिद अली साहब आदिल आबादी ने इस किताब की तस्हीह की। अल्लाह ताला मेरे मुआविनीन को अजर अज़ीम अता फरमाए और इस किताब की इशाअत को हिदायत के आम होने के सबब फरमाए और हमारी इन टूटी फूटी कोशिशों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। फ़कत वस्सलाम। बंदा मोहम्मद रोशन शाह कासमी, 100 नूरवी, 12 रबीउस्तानी 1431 हिजरी मुताबिक 29 मार्च 2010 बरोज पीर। नसीम हिदायत के झोंके पर मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के मुफ्ती हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शुएब साहब मदसिल्लाहु का तबसरा। मज़कूरा किताब कोई मुस्तकिल तसनीफ़ व तालीफ तो है नहीं, मगर अपनी अफादियत और असर आफरीनी के बाइस मुस्तकिल तसनीफ़ व तालीफ से बढ़कर है। दरअसल ये किताब इन 9 मुस्लिम भाइयों की दास्तान हयात है जिन्होंने कुफ्र व शिर्क से बेजार होकर बिलवास्ता या बिला वास्ता दाई इस्लाम हज़रत मौलाना मोहम्मद कलीम सिद्दीकी साहब दामत बरकातुहुम के दस्ते हक परस्त पर कुफ्र व शिर्क से तौबा करके हल्का बगोश इस्लाम हुए। बल्कि इनमें से बहुत से लोग वो भी हैं जिन्होंने हालत कुफ्र में मुसलमानों के खिलाफ उठने वाले हर अव्वल दस्ता की क़यादत की और अपना मजहबी फरीज़ा समझते हुए इसमें जी जान से लगे ताकि इनकी आत्मा रूह को सुकून चैन मिले, मगर इन्हें इस सुकून के बजाय बेसुकूनी, बेचैनी, डर और खौफ मिला और बिलाखिर इन्हें चैन सुकून इस्लाम की ठंडी छाँव में नसीब हुआ। फिर इस्लाम लाने की पादाश में हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, मगर कोई तकलीफ भी इनके पाँव को मुतज़लज़ल नहीं कर सकी। दर हकीकत इन 9 मुस्लिम भाइयों की यह दास्तान ईमान हम जैसे ख़ानदानी मुसलमानों को ख्वाब गफलत से झंझोड़ती और हमारी हकीकत को आईना दिखाती हैं। बिलाशुबा बाज़ मरतबा अपने ऊपर शक गुजरने लगता है कि हम मुसलमान भी हैं या नहीं, इसलिए किताब की खूबियों का अंदाज़ा तो सिर्फ पढ़ने ही से होगा। किताब हर खास व आम के पढ़ने की है, खुसूसन दावती काम करने वालों के लिए तो बहुत ही अहम है, क्योंकि इससे नए अज़्म हौसला मिलेगा, नई राहें खुलेंगी और दावती काम में आने वाले हर तकलीफ मसाइल का बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। माखूज अज़ माहनामा मुज़ाहिर उलूम जनवरी 2010 सफ़ा 47।
दाई इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कलीम साहब सिद्दीक की मद्दजिल्ला से एक गुफ्तगू। क़ारीन अरमगान को मुबारक हो कि एक ज़माने से बहुत से क़ारीन का इसरार था कि दाई इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कलीम साहब सिद्दीक की मद्दजिल्ला उल आली का इंटरव्यू शाया हो। बार बार हजरत माजरत कर देते थे। हमारे नौजवान आलिम और दाई मौलवी उमर नासिही नदवी हम सब के शुक्रिया के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने माह मुबारक 1430 हिजरी में एक निजी गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया और मुफ्ती मोहम्मद रोशन शाह के इसरार और हसरत से इजाज़त के बाद उसे कलम बंद भी कर दिया। मुदीर सवाल, बहुत अरसा से रुफ़क़ा का इसरार है कि आपसे आपके बचपन के हालात, बुजुर्गों से ताल्लुक़ और फिर दावत से वाबस्तगी के बारे में मालूमात कलम बंद की जाए। अगर आप इजाज़त अता फरमा दे तो हम सबको फ़ायदा हो। जवाब, मुझ जैसे नाकारा इंसान के हालात से तुम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? अक्सर हालात तो सुनाता ही रहा हूँ। तुम तो घर के एक फ़र्द हो, इसलिए तुम्हारे सामने तो हालात आए ही होंगे। सवाल, यादाश्त के मुकाबले में आपकी ज़ुबान से सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अपनी पैदाइश, बचपन के हालात और ख़ानदान के बारे में पहले कुछ फरमा दें। जवाब, जी हाँ, बड़ा अच्छा लगता है कि जब अपने रब करीम के इन बेहद बेहिसाब इनामात का जिक्र करता हूँ जो मेरे अल्लाह ने इस आसी और कमीना बंदे पर पैदाइश बल्कि पैदाइश के पहले से बारिश की तरह बरसाने शुरू कर दिए थे। यह हकीर अपने अकाबिर की खिदमत में जब भी पहला अरीज़ा लिखता था तो उर्दू के मशहूर शायर चक बस्त का ये शेर अपने हस्बे हाल होने की वजह से लिखता था। लिखा है, दाल और महशर ने मेरी फर्द इस्यां पर, ये वो बंदा है जिस पर नाज करता है करम मेरा। इन इनामात में जो इस हकीर पर अल्लाह ताला ने बिला तलब और बिला अहलियत अता फरमाए, इनमें एक बड़ा काबिल रश्क बल्कि काबिल फ़ख्र इनाम ये है कि इस हकीर की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल 1370 हिजरी बरोज़ दोशंबा सुबह के वक्त हुई, यानी पैदाइश के लिहाज से प्यारे रसूल की तारीख, दिन और वक्त के लिहाज से इत्तिबा नसीब हुई। फुल्त इस हकीर का जाय पैदाइश है जिसे मौलाना मनाजिर अहसन गिलानी ने हिंदुस्तान का अलबद्र कहा है। ये फुल्त ऐसी बस्ती है कि जिसको ये इम्तियाज हासिल है कि 862 हिजरी में आरिफ रब्बानी हजरत काजी यूसुफ नासिही शेख उस्ताद मुरब्बी बादशाह सिकंदर लोधी मुर्शद शाह बहलूल लोधी ने एक बबूल के पेड़ के नीचे 2 रकात नफिल पढ़कर अपने शागिर्दों के दर्स से इसकी असास रखी और 862 हिजरी से आज तक वो दर्स किसी न किसी शक्ल में कायम है, जो एक इदारा बनकर अब मुर्शिदी और सैयदी हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी नव्वरल्लाह मरकदहू के हुक्म से जामिया इमाम वलीउल्लाह के नाम से मौसूम कर दिया गया है, जिसको न सिर्फ हुज्जतुल इस्लाम हजरत शाह वलीउल्लाह का मानवी मादर इल्मी होने की शर्फ हासिल है, बल्कि इस दर्स के तवातुर तारीखी से इस्तेफादा करने वालों में हजरत मुजद्दिद अलिफसानी शेख अहमद सरहिंदी, इनके शेख व मुर्शद हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला, मशहूर मुहद्दिस शेख अली मुत्तकी बुरहान पुरी, जो पोते हैं काजी यूसुफ नासिही के, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह के वालिद माजिद शाह अब्दुल रहीम और दादा शेख वजीहुद्दीन शहीद, जो अपने शेख व मुर्शद शाह अबुल फतह खलीफा और जानशीन हजरत निजाम नार नौलवी से ताल्लुक और आपकी इमा पर रहतक से हिजरत करके फुल्त आकर रहने लगे थे, जैसे उलमाए कराम और मुक्तदियाने ज़माना शामिल हैं। इस बस्ती को अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयद अहमद शहीद की तहरीक का मरकज आगाज होने का शर्फ भी हासिल है। इस बस्ती के सिद्दीक शयूख के खानदान, जो काजी यूसुफ नासी की औलाद है और जिसे शाह वलीउल्लाह के नानिहाली खानदान होने का शर्फ हासिल है, से बदनाम करने के लिए इस हकीर का नस्बी ताल्लुक है। वालिद माजिद जनाब हाजी मोहम्मद अमीन साहब थे, जो इब्तदा में हजरत शेख बहाउद्दीन चंडेरवी से बचपन में दादा के साथ जाकर बैयत हो गए थे, जो हजरत सैयद अहमद शहीद के सिलसिला के बुजुर्गों में से थे, और बाद में हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन से बैयत हुए। हजरत थानवी से फिक्री मुनासबत रखते थे। हजरत मौलाना असदुल्ला, हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद जकरिया कांदलवी और हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब से बहुत बेतकल्फी का ताल्लुक था। इलाका के मशहूर जिम्मेदारों में इनका शुमार था। बहुत सादा जिंदगी गुजारते थे, मगर सोच और फिक्र बहुत आला थी। खेती भी बहुत ही मयारी करते थे। मगरबी यूपी में सबसे पहले इंग्लैंड से 2 ट्रैक्टर हमारे वालिद साहब ने ही मंगवाए थे, जिनके साथ कई माह तक 2 अंग्रेज इंजीनियर रहनुमाई के लिए हमारे यहाँ रहे थे। लोग इनको मियाँ जी कहते थे। गैर मुस्लिम लोग इनकी सखावत और हर एक के साथ हमदर्दी की वजह से ना जाने क्या क्या अलकाब बोलते थे। मामूलात और उसूल के हद दर्जा पाबंद थे। जिंदगी के आखिरी 60 सालों में शायद तहज्जुद और मामूलात की कभी नागा ना हुई हो। इंसानों के काम आते अफ़्व दरगुजर जिंदगी की सादगी की ना जाने कितनी हिकायात अवाम खास में वालिद साहब की मशहूर थी। मामलात की सफाई की वजह से बड़े बड़े लोगों में बड़ी साख थी। हमारे दादा हाजी ज़हूरुल्लाह साहब
حضرت گنگوہی کے مسترشدین میں بہت زاہدانہ مزاج رکھنے والے صوفی تھے۔ اس حقیر کی والدہ ماجدہ محترمہ زبیدہ خاتون سادات بارہا میں سے نصیر پور رتھیڑی ضلع مظفر نگر سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ والد صاحب کی تیسری اہلیہ تھیں۔ والد صاحب نے پہلی شادی اپنی بیوی مومانی سے کی تھی جو عمر میں والد سے بہت بڑی تھی۔ ان کے انتقال کے بعد ایک شادی پھلت میں ہوئی، ان کا بھی جلد انتقال ہو گیا۔ تیسری شادی ہماری والدہ سے ہوئی جو عمر میں والد صاحب سے کم تھی۔ والدہ حد درجہ عالی اخلاق اور غریب پرور مزاج رکھتی تھی۔ زندگی بھر صلی من قطعک واعف عمن ظلمک وآتی عمن حرمک واحسن عمن اساء الیک۔ حدیث نبوی قطع رحمی کرنے والے کے ساتھ تعلق جوڑو، ظالم کو معاف کر دو، جو تم کو محروم کرے اسے عطا کرو، بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ احسان کا سلوک کرو کا بالکل مظہر ان کی زندگی میں تھا۔ والدہ ماجدہ اکثر اس حقیر کا شفقت کے ساتھ بھائی بہنوں اور گھر والوں کے سامنے ذکر کرتی تو بڑا اچھا لگتا۔ میرے کلیم نے بچپن میں مجھے بالکل پریشان نہیں کیا، یہ بھی اس حقیر پر اللہ کی بڑی نعمت تھی۔ مجھ سے 2 بڑے بھائی، 3 بہنیں اور 1 بھائی اور 2 بہنیں چھوٹی ہیں۔ ابتدائی تعلیم اسی تاریخی مدرسے میں ہوئی جس پر پھلت کی اساس رکھی گئی، جس کا نام قطب عالم حضرت گنگوہی نے اپنے ایک مسترشد حضرت مولانا فیض احمد پھلتی کے نام پر فیض الاسلام رکھ دیا تھا، اور اب جامعہ امام ولی اللہ کے نام سے موسوم ہے۔ گاندھی جی 1929 میں یہاں آئے تو معائنہ میں بڑے اچھے کلمات لکھے۔ پہلی کلاس میں داخلے کے لیے بھائی صاحب لے کر گئے تو عمر 4 سال سے کم تھی۔ قانون آیا تھا کہ 5 سال سے کم پہلی کلاس میں داخلہ نہ ہو، تو بھائی صاحب نے 1 سال عمر زیادہ لکھوا کر داخلہ کروایا۔ باقاعدہ اور اماں پارے کا ایک ماہ میں پڑھا اور پھر قرآن مجید پڑھنے کا شوق ہوا۔ 4 روز میں پورا ناظرہ کلام مجید پڑھا اور 5ویں روز استاد کو جگہ جگہ سے سنایا اور بتاشے خوشی میں تقسیم ہوئے۔ 5ویں کلاس میں حفظ شروع کیا، 7 پارے حفظ کیے تھے کہ چھٹی کلاس میں کھتولی داخلہ لیا۔ پکیٹ انٹر کالج میں سائنس سے 12ویں کلاس پاس کی۔ 6ٹی کلاس میں تھا کہ ایک عرب جماعت پھلت آئی، اس کے ساتھ امیر صاحب کی اجازت سے جو افریقہ کے گجراتی تھے 3 دن لگائے، پھر تبلیغی جماعت سے فطری مناسبت کی وجہ سے اس میں شامل ہو گیا۔ ہماری والدہ کے شیخ و مرشد اور ہمارے والد صاحب کے دینی مشیر اور دوست حضرت مولانا علاء الدین صاحب ایک بزرگ پھلت میں تھے جنہوں نے میرا اور میرے سبھی بھائی بہنوں کا نام رکھا۔ حضرت مولانا الیاس نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ فرمایا تو 3 بار ان سے مشورہ کے لیے پھلت تشریف لائے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزو کے ہاں بھی حضرت مولانا علاء الدین کی بڑی قدر و منزلت تھی، جن کو علاقہ کے لوگ بڑے مولوی صاحب کہتے تھے۔ ان کے کرام میں تبلیغ کے ابتدائی ضابطوں کی وجہ سے جماعت والے پھلت آ کر تشکیل نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے پھلت والوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ پھلت والوں کو جماعت میں جانے کی ضرورت نہیں، جس کی وجہ سے یہاں جماعت کا کام بالکل نہ کے برابر تھا۔ اس حقیر کو بہت تکلیف تھی۔ اس حقیر نے بچوں کی ایک جماعت بنائی اور کام شروع کیا۔ کبھی 1-2 بوڑھے بھی ہم پر ترس کھا کر گشت وغیرہ کرا دیتے تھے اور جماعت کے کام سے دلچسپی کی وجہ سے اس حقیر کی حاضری اسکول میں متاثر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے استاذہ کو شروع میں بدگمانی رہی، مگر الحمدللہ امتحانات کے نمبر دیکھ کر سارے اساتذہ حد درجہ اعتماد کرنے لگے۔ انٹرمیڈیٹ کرنے کے بعد میرٹھ کالج سے BSc کیا اور PMT/MBBS کے داخلہ کا جو امتحان اس وقت پورے ملک کا ہوتا تھا اس میں بیٹھا، اور الحمدللہ اس میں پورے ملک میں میرا 57واں نمبر آیا۔ بہت سے میڈیکل کالجوں نے مجھے مبارکباد کے خطوط لکھے اور اپنے ہاں داخلہ کی پیشکش کی، مگر میرے اللہ کو اپنے بندے پر ترس آ رہا تھا۔ اللہ کے نیک بندوں کی زیارت، نیک بندوں سے خاندانی تعلق، خصوصاً والدین کی نیکی کام آئی۔ اس گندے اور گنوار کو میرے کریم اللہ نے شیخ العرب والعجم سیدی و سندی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مرکدو کے قدموں میں پہنچا دیا۔ اس حقیر نے حضرت والا سے تعلق کی برکت سے ندوہ کے خصوصی درجات میں داخلہ بھی لیا، MBBS کا ارادہ ترک کر دیا۔ شروع میں گھر والوں کو بتایا بھی نہیں کہ میں نے PMT کوالیفائی کر لیا ہے۔ بعد میں بھائیوں کو معلوم ہوا تو ناراض بھی ہو گئے کہ ہمیں ایسا دنیا دار سمجھا، ہم تو خود بھی خوش ہوتے کہ دین کا انتخاب کیا۔ میرے حضرت والا نے حضرت مولانا عارف سنبھلی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مولانا شہباز اصلاحی کو اس حقیر کے لیے خاص طور پر نظر عنایت رکھنے کا حکم فرمایا، جو ندوۃ العلماء کی مسجد میں اس حقیر کو خاص وقت دیتے تھے۔ ندوہ میں رہ کر اس حقیر نے بس ندوہ کی روٹیاں کھائیں اور مظفر نگر کا ایک دیہاتی گنوار کر بھی کیا سکتا تھا۔ بہرحال کچھ حالات رہے، حضرت مولانا نور علوم مرکدو نے ہریانہ کے ارتداد سے متاثرہ علاقہ میں کام کے لیے بھیج دیا اور یہ حقیر ندوہ میں رہ کر نصاب کی تکمیل سے محروم واپس لوٹا۔ لوگ مولانا کہنے لگے، شروع میں لوگوں کو منع کرتا رہا، مگر بعد میں بے حس ہو کر عادت ہو گئی۔
सवाल आप एक बार हजरत मौलाना के मौलवी कहने का वाकया बयान फरमा रहे थे, वो क्या था? जवाब मुल्क में था तो मोहल्ला के लोग खुसूसन खेती करने वाले मुलाजिम सब भाई साहब कहते थे। नदवा में दाखिला से पहले एक बार तकिया शाह अल मुल्ला अपने हजरत वाला की खिदमत में था। मस्जिद से बंगला आया। हजरत मौलाना नवर अल्लाह मरकदू तशरीफ फरमा थे। फरमाया आइए मौलवी कलीम सिद्दीकी साहब। वापस फुलता आया, जो मिलता वही कहता मौलाना साहब। मौलवी साहब शुरू शुरू में बहुत शर्मिंदगी महसूस करते, मना करता रहा, मगर कब तक आखिर हार मान ली। मेरे हजरत वाला की जुबान मुबारक से निकला हुआ लफ्ज अल्लाह ने सब की जुबानों पर जारी कर दिया। सवाल आपकी शादी का वाकया भी काबिल जिक्र है, किस तरह हुई थी? जवाब 1980 में मेरे हजरत वाला की इनायत से शाही दावत के साथ इस फकीर को हरमैन शरीफैन हज बैतुल्लाह के लिए हाजिरी की सादत हासिल हुई। 13 रोज में वापसी हो गई। शाह खालिद सऊदी अरब के फरमान रवा थे, उन्होंने बड़ा इकराम किया। इस हकीर ने शुक्रिया का खत लिखा, जल्दी वापसी पर इजहार अफसोस भी किया। इस पर उन्होंने इस हकीर के मदीना यूनिवर्सिटी में दाखिला का नज़म कर दिया। बाज़राए से मालूम हुआ कि वहाँ के शाही खानदान में शादी की भी किसी ने ख्वाहिश की। इस दौरान मेवात की एक जमात जो अपने अमीर के अलील हो जाने की वजह से परेशान थी, उसको ले जाकर चिल्ला पूरा करवाने के लिए झंझाना गया और वहाँ बस शादी का प्रोग्राम बन गया। एक दीनदार खानदान के मसाइल का एक अजीजा ने जिक्र किया। इस हकीम ने किसी के काम आने की नीयत से इरादा कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह नेकी सादगी से शादी हो गई। माज़अल्लाह के लिए किसी काम का इस आजिज बंदे ने इरादा कर लिया। करीम आका ने इस लाइन की हर नेमत से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकीज़ा सिफत मिसाली हाफसा माहिर कारिया हिफ्ज़ की मिसाली उस्ताद को घर के कोने कोने और ख़ानदान के बच्चे तक कुरान के शौक़ व बरक़ात पैदा होने का अल्लाह ने ज़रिया बनाया। दीनी और दावती कामों में अल्लाह का इस हकीर पर कितना बड़ा एहसान है। फल्हम्दुलिल्लाहि अला ज़ालिक। सवाल आपने एक दो बार हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदिलवी से ताल्लुक़ और उनकी खिदमत में हाज़िरी का जिक्र फरमाया है, कुछ इसकी तफसील भी इरशाद हो। जवाब बचपन से ख़त किताबत का बहुत शौक़ था, बल्कि अगर मैं कहूँ कि अल्लाह ताला ने सारी दुनिया की चीज़ों में लगा कर और इनसे निकाल कर अपने नेक बंदों के कदमों में ला डाला तो ये बिल्कुल सच है। शुरू में मुशायरों को सुनने का शौक़ था, आवाज़ बहुत अच्छी थी। 50 से ज़्यादा शुअरा के कलाम इनकी आवाज़ और लहजा में पढ़ लेता था। घर में कोई ख़ास मेहमान आता, रात को मुझे उठाया जाता कि मुशायरा होगा और मैं अनवर जलालपुरी, कनौर, महेंद्र सिंह बेदी वगैरह के अंदाज में मुशायरा की निज़ामत करता। फिर शुअरा का कलाम सुनाता, बाद में शायरी भी करना शुरू कर दी। अफसाने लिखने शुरू किए। खातून मशरिक 20वीं सदी में मेरे बहुत से अफसाने शाया हुए। ड्रामे भी लिखे। ऑल इंडिया रेडियो से बाज़ ड्रामे रेले हो गए, गाने भी गाए, बाज़ म्यूज़िक भी सरसरी कोशिश से आ गए, हाथ से फ़ोटो बनाने भी ज़रा सी कोशिश से आ गए। कई मुकाबलों में सूबाई इनाम भी मिले और अल्लामा शम्स नवीद उस्मानी की किताब क्या हम मुसलमान हैं ने बहुत मुतासिर किया। तो तारीखी वाक़यात को अफसानवी अंदाज में लिखना शुरू किया, जो खुसूसियत से रामपुर के नूर, बतूल और सिकरा रिसालों में शाया हुए। नूर में उस ज़माना में मेरा एक इंटरव्यू शाया हुआ था बहैसियत कलमकार। बुजुर्गों से ताल्लुक़ का शौक़ था। एक ख़त मैंने हज़रत शेखुल हदीस को लिखा था। तारुफ में लिखा कि मेरी उम्र 17 साल है वगैरह वगैरह। हज़रत शेखुल हदीस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले जा रहे थे। किसी खादिम को रसीद जवाबी लिखने की जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने उम्र का ख्याल करके जवाबी ख़त में पसंद के मुताबिक शादी करने का एक तावीज़ भेज दिया। इस उम्र में भाई बहनों में ख़त वगैरह महफूज कहाँ होते। मेरी छोटी बहन ज़ैनब ने वो ख़त खोला, बस वो तो मुझे चिमट गई। भाई मियाँ आप किससे शादी करना चाहते हैं? आपको तवीज़ की क्या ज़रूरत है? आप मुझे बताइए, मैं अम्मी से कहूँगी। मुझे हद दर्जा शर्मिंदगी हुई। अब सफाई भी कैसे पेश करता, बहुत ही दिल टूटा। काफ़ी अरसे तक मैं दोबारा ख़त लिखने की हिम्मत ना कर सका। इसके बाद जब मैं मेरठ कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहा था, हज़रत शेख मदीना मुनव्वरा से सहारनपुर तशरीफ़ लाए। हमारे बड़े बहनोई सैयद मोहम्मद सरदार साहब मरहूम, जो बड़े रहम दिल और मुतवाज़े आदमी थे, उन्होंने कहा कलीम हज़रत शेख सहारनपुर आए हुए हैं, चलो मिलने चलते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने एक नया जोड़ा बेल बॉटम और नए फैशन की शर्ट बनवाई थी। वो नए कपड़े पहने और भाई साहब के साथ असर से पहले हम लोग सहारनपुर पहुंचे। नमाज असर के बाद मुज़ाहिर उलूम की मस्जिद कदीम में असर की नमाज पढ़ी। असर के बाद फौरन मजलिस हुई। सब लोगों ने जगह ले ली और हमें बाहर जूतों के पास खड़े होने की जगह मिली। कोई किताब पढ़ी जा रही थी। वो किताब के बाद सहन में एक साहब ने ऐलान किया कि जाने वाले इस वक्त मुसाफा मिला लें और आने वाले सुबह मुसाफा मिलाएंगे। भाई साहब मरहूम पर हद दर्जा तवाज़ो का गलबा था। वो बोले मैं गुनहगार कहाँ ऐसे बुजुर्ग से मुसाफा मिलाने के लायक हूँ। बस मैं तो यहीं से ज़ियारत कर लूँगा, तुम जाओ मुसाफा मिला लो।
मैंने भाई साहब से कहा कि मैं जाने वालों में भी मुसाफा मिलाऊंगा और आने वालों में भी। लाइन लग गई। जब मेरा नंबर हजरत शेख से मुसाफा मिलाने का आया तो हजरत ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत से मोहब्बत से दबाया। जरा हंसकर कड़क आवाज में फरमाया, आ प्यारे, आज तुझसे मैं मुसाफा मिलाने बैठा हूँ तो आने वालों में भी मिला ले और जाने वालों में भी मिला ले। बस आज पेट भर के मुसाफा मिला ले। ये फरमाते रहे और मुस्कुराते रहे। देर तक मेरा हाथ दबाते रहे। लाइन तकरीबन 5 मिनट या इससे ज्यादा रुकी रही। मौलाना नसीर साहब, जिनको बाद में मैंने जाना, वो मेरे हाथ छुड़वाने के लिए सिफारिश से फरमाते रहे। मुझे उनकी सिफारिश अच्छी नहीं लग रही थी कि जितनी देर मुसाफा मिलता रहे अच्छा है। सवाल हजरत शेख का आपसे ये कहना कि आने वालों में भी और जाने वालों में भी मुसाफा मिलाऊंगा, क्या उन्होंने सुन लिया था? जवाब, इस वक्त तो मुझे ऐसा लगा था कि सुन लिया, मगर अब सोचता हूँ कि इतनी दूर से सुनने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। हजरत को कश्फ वगैरह हुआ होगा। सवाल, इसके बाद क्या हुआ? जवाब, कुछ देर के बाद हजरत ने हाथ छोड़ा और इस मुसाफा की लज्जत आज तक महसूस करता हूँ। इशा की नमाज के कुछ देर बाद भाई साहब मरहूम फरमाने लगे, इस वक्त खतौली के लिए ट्रेन है। हजरत की ज़ियारत भी हो गई और हमारा मुसाफा भी, इसलिए चलें, बस अभी चलते हैं, सुबह की ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। हम चले आए। इसके बाद एक दो खत मैंने लिखे जिनका जवाब आया। इस दौरान मीरठ के एक कारी साहब जो फुल्त के रहने वाले थे, अपने मुक्तदियों और मीरठ के मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ एक बस दो चार मेरठ के मुअज़्ज़िज़ लोगों के साथ एक बस में सहारनपुर पहुंचे। फुल्त से हजरत को वालहाना ताल्लुक था। फुल्त वालों को फौरन मुलाकात के लिए बुला लेते, इसलिए फौरन बुला लिया। हजरत शेख ने उनसे फरमाया कि फुल्त में तो हमारा एक दोस्त रहता है। उन्होंने मालूम किया, हजरत मैं तो एक ज़माने से मेरठ में रहता हूँ। फुल्त में कौन है? हजरत ने फरमाया, कलीम। वो मेरठ वापस आ गए तो बड़े भाई मोहम्मद अलीम सिद्दीकी एडवोकेट जो इस वक्त वकालत करते थे, उनसे मालूम किया कि फुल्त में कलीम साहब कौन है। हजरत शेख ने उनका जिक्र कर रहे थे। भाई साहब ने बताया कि फुल्त में तो कलीम मेरा छोटा भाई है जो मेरठ पढ़ने आता है। उन्होंने कहा, वो लड़का भी नहीं, कोई बुजुर्ग आदमी है। हजरत फरमा रहे थे कि फुल्त में हमारा एक दोस्त रहता है। हजरत शेख के इस मुशफिकाना मुसाफा को यह हकीर अपनी जिंदगी के मोड़ का बाइस समझता है। हमारे यहाँ फुल्त में एक साहब हाफिज अब्दुल लतीफ कासिमपुरी मदरसा में पढ़ाते थे। वो हजरत शेख से बहुत नौमरी के ज़माने में बैयत हुई थे, जब हजरत के यहाँ भीड़ वगैरह नहीं होती थी। उन्होंने मदीना मुनव्वरा हजरत शेख को खत लिखा तो जवाब में हजरत शेख ने उनको लिखा कि फुल्त में हमारा एक दोस्त रहता है, उसके पास मिलने जाया करो। उन्होंने जवाब में लिखा, फुल्त में तो कलीम नाम का एक लड़का रहता है जो कॉलेज में पढ़ता है। हजरत ने फिर इस हकीर से ताल्लुक का हुक्म फरमाया। इस हकीर को हैरत है कि इस जमाना में हुक्का और बीड़ी की बू से इस हकीर को हद दर्जा मत ली आती थी। हाफिज साहब ने मुझे खत दिखाया। हजरत ने लिखा था कि इसको हुक्का और बेड़ी की बू से बहुत तकलीफ होती थी, इसका ख्याल रखना। हाफिज साहब बेड़ी और हुक्का का बहुत शौक रखते थे। बाद में शेख से ताल्लुक बढ़ता गया। इसके बाद मसीहुल उम्मत हजरत मौलाना मसीहुल्लाह खान साहब और मौलाना असदुल्लाह साहब नाजिम मदरसा मज़ाहिर उलूम की खिदमत में जाता रहा। ख़त किताबत भी होने लगी। हजरत शेखुल हदीस के यहाँ हाजिरी होती तो शुरू में हजरत लोगों से तारुफ कराते। ये हकीर नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर, एक तरह से एहसास कमतरी का शिकार रहा है। हजरत के इस तरह नवाजने से बहुत ही बोझ सा पड़ता था। हजरत से मैंने अर्ज भी किया कि हजरत हाजिरी को दिल चाहता है मगर लोग उंगलियां सी उठाते हैं तो शर्मिंदगी होती है। अगर ज़ियारत और लाइन में लगकर मुसाफा मिलाने पर इक्तफा हो जाए तो बार बार हाजिरी की हिम्मत हो सकती है। हजरत ने मंजूर फरमा लिया, मगर एक बार फरमाया कि प्यारे, काम आता ये तारुफ काम आता। सवाल, हजरत मौलाना से बैयत का ताल्लुक किस तरह हुआ? जवाब, ये हकीर हजरत मौलाना नव्वर अल्लाह मरकदू की किताबें पढ़ता था। हमारे छोटे बहनोई सैयद सईद अख्तर साहब ने एक मुलाकात से एक घरेलू लाइब्रेरी खरीदी थी। इसमें हजरत मौलाना की किताबें मिली, तारीख, दावत व अजीमत, सीरत सैयद अहमद शहीद, तक़वियतुल ईमान, तज़किरा शाह फजल रहमान गंज मुरादाबादी वगैरह। मगर बहैसियत बुजुर्ग हमारे इलाका में हजरत मौलाना का तारुफ नहीं था। फुल्त हजरत सैयद अहमद शहीद के वाक़यात तो घरों में बूढ़ी औरतों बच्चों को बतौर तबरुक सुनाती थी। एक रोज एक वाक़या से दिल बहुत शिकस्ता था। नुकुश इकबाल ज़ेरे मुताला थी। इकबाल दरे दौलत पर उन्वान के तहत इकबाल की रोज़े अत्हर पर दर्दमंदाना गुजारिशात और हजरत मौलाना की जुबान से इस हकीर का अजीब हाल हो गया। ऐसा लगा ये हकीर भी सबके साथ हाजिर है। इस जमाने में हुजूर की ज़ियारत का शौक हद दर्जा गालिब था। न जाने कितने नुस्खे इसके लिए इस्तेमाल किए। प्यास बढ़ती गई। मेरे आका
रब्बे करीम को प्यार आया। इतने बुजुर्गों से तारुफ और करीबी ताल्लुक के बावजूद मेरे अल्लाह ने इस हकीर को हजरत मौलाना के कदमों में ले जा डाला। सवाल ये बात बड़ी हैरत की है कि यहाँ ऐसी ऐसी बड़ी शख्सियत इलाका में मौजूद थी, सबसे ताल्लुक तारुफ था और हजरत मौलाना का तारुफ भी था नहीं था, फिर आप वहाँ कैसे पहुँचे? जवाब, असल में एक ख्वाब में हजरत मौलाना मियाँ अली का शहद चाटने का हुक्म हुआ। हमारे नबी वसल्लम की तरफ से मिला। मैं हजरत मौलाना को हजरत मौलाना अब सैयद अबुल हसन अली नदवी के नाम से जानता हूँ। मौलाना अली मियाँ कौन है, इसके लिए हफ्तों तड़पता रहा। बाद में नईम भाई ने बताया कि वह हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी जिनकी किताबें हैं मौलाना अली मियाँ हैं। तो हजरत मौलाना को अरीसा लिखा। हजरत बड़ी शफकत से जवाब तहरीर फरमाया। जवाब में ये शेर भी लिखा, बहरे तस्कीन दिल ने रख ली है गनीमत जानकर, जो बवक्त नाज कुछ जुम्बश तेरे अबरू में थी।